Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 4. The chapter name is metals and non-metals. Okay, and in this chapter, we started in a previous classes also, and then we understand about the what is metals and non-metals physical property. About the physical property we discuss here in today class. We also this point is continue, okay, how in physical property different between a metals and non-metals. Okay, next thing is we understand in this chapter is anything which occupy space or mass is called a matter. Matter is made up of some substances, some are elements and some are compounds. Means elements means single substance is वो जो substance है it is made up of, और mixture या compound means क्या हो गया more than one substance कोई भी चीज है जो वो बनी. Okay, so here we on the basis of elements we divided into a material into three parts. First one is metal, second one is non-metal, and third one is metalloids. Okay, and metals just like iron, copper, tin, gold, etc. are the metals. In general, metals are hard and shiny appearance. Non-metals are shiny, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen are the example of non-metal. In general, they are not so hard. ये बहुत ज़्यादा hard नहीं होते और they are not so much shiny appearance. They have a dull appearance. Okay. Next, third one is metalloids. Some element have a certain property of metal. ऐसे materials जिनके अंदर certain properties तो metals की present होती हैं और कुछ certain property non-metal की present होती है are called a metalloids. Okay. Then after we discuss one point is hardness in physical property. ठीक है, occurrence in physical properties के basis पे metals और non metals को describe करते हैं. ठीक है, तो उसमें सबसे first point जो था क्या था hardness. Metals क्या है generally hard होते हैं और non metals generally hard नहीं होते. For example just like iron, copper, all other जब जैसे हम इनको compress करने की कोशिश करते हैं they are not easy to compress. Okay, और हम जो जैसे चौक हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, इन सब चीजों को देखें कोल हो गया तो इनको हल्का सा बिट करेंगे, थोड़ा दबाएंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो दे आर easy to compress. So these are the known metals. Okay, the first property clear. Second one is malleability, the property which allow the metals to be hammered into a thin streak और फॉयल इज कॉल्ड अ malleability. ऐसी चीजें जो इजीली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा malleability बोलते हैं. क्लियर? ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर जिनको हैमर के थ्रू हम उनको बहुत इजीली थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं आर कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी इज अ malleability. एंड ये जो है मेटल्स में प्रेजेंट होती है, हम एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर देख सकते हैं. आपने स्वीट्स के ऊपर जो एक थिन शीट सिल्वर की देखी है वो malleability की वजह से ही है. और इन लास्ट क्लास आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन कि विच वन इज मोस्ट malleable. इन सब में से सबसे बेस्ट malleable मेटल कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड जिंक. तो आर आंसर इज गोल्ड. ऐसे मेटल जिनकी हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं ना, वो क्या उनमें क्या हाईली malleability प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट theme sheet. This is characteristic property of metal. As you must have noticed, material like coal, pencil, lead do not show any property. उनके अंदर ये इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती. देन हमने डिस्कस किया था 4.2 में कि हम इस जगह पर एक्सेल, बल्ब और वायर्स को यूज करते हुए यहाँ पर एक नेल को यूज किया, इसी की जगह पर मैं कोल को यूज करती हूँ, रबर को यूज करती हूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ यूज किया. व्हेनेवर बल्ब कब ग्लो होता है? जब मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई किसके अंदर? मेटल्स के अंदर. लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so now our in physical property a new point in today class is ductility. What is ductility? We
understand here. Where do you find the use of aluminium and copper wire? आपने देखा होगा अपने आसपास में जब भी वायर्स होते हैं ना, या तो एल्यूमिनियम वायर होंगे या कॉपर वायर होंगे, ठीक है. हैव यू सीन अ वायर ऑफ कॉल? क्या आपने कभी देखा है कॉल का वायर बनाया जा रहा है? डेफिनेटली नॉट. कॉल के वायर्स नहीं होते, आपने कभी देखा भी नहीं होगा. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into a wire is called a ductility. ऐसी प्रॉपर्टी देखिए, मैलेबिलिटी क्या थी कि हम हैमर की हेल्प से मेटल को बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मैलेबिलिटी. अब यही उसी में क्या हो रहा है कि अगर हम मेटल्स को वायर्स बनाने में यूज कर रहे हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो जैसे कि हमने पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि हम कॉल से वायर नहीं बना सकते, मींस कॉल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है. हाँ, लेकिन हम कॉपर के वायर बना सकते हैं, हम एल्यूमिनियम के वायर बना सकते हैं. ओके, तो क्यों? सो मेटल्स हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल डोंट हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. आपको डक्टिलिटी मींस क्लियर हो रहा है? मींस हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना. वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है. और हम देखते हैं कि भाई एल्यूमिनियम, कॉपर जो है आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स, और भी हम वायर जो है इन्हीं चीजों से बनाते हैं. तो यहाँ पर हम इस प्रूफ के थ्रू ये बता पा रहे हैं कि भाई मेटल्स हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल डजंट हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर. दिस प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स is called a ductility. Gold, silver among of the best ductile. Means metals are the best ductile, है ना. तो metals में ductility या metals जो होते हैं वो best ductile होते हैं और non metal are the non ductile. Clear? Next physical properties. Have you ever noticed the difference in sound and dropping in iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? अब आपको next property जो explain करने जा रहे हैं उससे पहले एक practical करके बता रहे हैं कि आपको एक iron sheet लीजिए, ठीक है, एक मेटल कॉइन लीजिए या कोई एक प्लेट ले लीजिए एंड कोई एक बॉल ले लीजिए, ठीक है. तो इन चारों पीसेस को ऊपर से नीचे फ्लोर के इन चारों पीसेस को हम ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे. ओके, जैसे ही हम ड्रॉप डाउन करेंगे, इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. आप इसको देखिए और डू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस. आप ये देखेंगे कि इनको कैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. तो हैव यू सीन वुडन बेल इन अ टेंपल? क्या आप इनकी जब नीचे गिरेंगे तो इनकी आवाज किस में से होगी? मेटल कॉइन की होगी, आयरन शीट की होगी या पीस ऑफ कॉइल की होगी? तो इसी है, मेटल कॉइन जब गिरेगा तो उसकी आवाज होगी, आयरन शीट होगा तो उसकी आवाज होगी, है ना. तो इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड? आपने आप टेंपल्स वगैरह में गए होंगे तो वहां पे मेटल की जो है बेल लगी होती है. क्या मैं उस जगह पर वुडन की बेल लगा दूं तो क्या होगा? ऐसा क्यों नहीं होता कि टेम्पल्स में आयरन बेल ही होती है या मेटल्स की बेल ही लगी होती है, वुडन बेल क्यों नहीं होती? ठीक है. तो हियर इज द आंसर. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जो मेटल्स है दे हैव अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उस पे हार्डली स्ट्राइक करते हैं. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and other of metal. एक किसका बना होता है? वुड का, एंड अदर किसका बना होता है? मेटल का. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल? इस सेम प्रैक्टिकल हम वापस करके देखते हैं. हमारे पास में एक बॉक्स वुड का है एंड सेकंड बॉक्स मेटल का बना हुआ है, ठीक है. तो हम दोनों में से अगर स्ट्राइक करेंगे तो किसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? तो ऑफ कोर्स है कि जो मेटल का बना है उसी बॉक्स में से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. तो कैन यू टेल व्हिच बॉक्स इज मेटल? बाय स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ द बॉक्सेस सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. तो यहाँ पर एक और फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है कि जो मेटल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड. दे आर सेड टू बी ए सोनोरस. इसी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं आर द sonorous things. The property of producing a ringing sound by a metal when it is strike with a hard material is called sonority. Thus, metals are called the sonorous. These metals are used for making bells, and metal wire are used in a musical instrument. Non-metal do not make a ringing sound when we strike them, and non-metals are non-sonorous. जो non-metals होते हैं वो non-sonorous होते हैं, ठीक है. तो we read about the different type of physical property. After that, in last we conclusion here, after performing the above activity, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable,
ductile, sonorous are good conductor of heat and electricity. भाई हमने जितने भी प्रैक्टिकल किए उन सब में हमने कहा कि भाई कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है, lusterless present है, they may be malleable, they may be ductile, they may be sonorous, and they may be good conductor of heat and electricity. Okay, these material which generally possess this property, ऐसे material जिनके अंदर ये सब properties present होती हैं, mostly properties present होती हैं, are called the metals. उन्हें हम क्या बोलेंगे? They are the metals. And the example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, material like coal, sulfur are soft and dull in appearance. अब इसके ही comparison में अगर हम देखें कि भी कोल है, सल्फर है, आर द डल मटेरियल, ये लस्टरनेस में क्वालिटी के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है. दे ब्रेक डाउन वेरी पाउडरी मैश एंड टैपिंग विद द हैमर. जैसे हम उनको हल्का सा फोर्स लगाएंगे हैमर के थ्रू, दे इजीली कन्वर्ट इनटू अ पाउडरी फॉर्म. They are not sonorous and poor conductor of heat and electricity. ये बहुत ही non sonorous होते हैं, इनमें sonorous की property नहीं होगी. They are the poor conductor of heat and electricity. So these material are called a non-metals. कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर जितनी properties हैं, अगर maybe they are not present in anything, are called the non-metals. Okay. The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. मेटल्स लाइक, अब मेटल्स के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. इसीलिए हम ऑल ऑफ नहीं कर रहे, मोस्टली प्रेजेंट, जनरली पोजेस बोल रहे हैं, ठीक है. तो मेटल्स जो है सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद अ नाइफ, इजीली कट हो जाते हैं. एक सिंपल नाइफ से अगर हम पोटेशियम को या सोडियम को कट करना चाहें तो बहुत इजीली कट हो जाएंगे. मर्करी इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट at room temperature. These are the exception. ये क्या है? Exception है. अब भाई कोई चीज लिक्विड में है तो वो हार्ड तो नहीं हो सकती ना, तो ये एक्सेप्शन है बस मेटल्स के अंदर, बाकी सब जो है ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं. Now we move to a second point. It is a chemical property of metals and non-metals. Okay. Okay, our point is reaction with oxygen. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. I think you all are understood about this term rusting of iron. मतलब लोहे को जंग लगना. Recall the reaction which rust is formed. आप उस reaction को recall कीजिए. You read about it in a class 7. Which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity burning magnesium ribbon in air. आपने ये activity भी की है कि magnesium ribbon को burn करते हैं तो क्या produce होता है ना. You have learned that in both the process oxide formation take place. आपने देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्लास 7th में रीड किया है, मैग्नीशियम रिबन को भी एयर में बर्न होने के बाद में जो रिएक्शन हैपन होती है उसके बारे में हमने क्लास 7th में रीड किया है. कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी रीड है तो आपका दोनों का रिजल्ट में क्या याद है कि दोनों के अंदर जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से, एंड फॉर्म कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड मींस मेटल, जो भी मेटल है यूज कर रहे हैं, भाई आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, फेरस यूज कर रहे हैं तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा. ओके, तो ये we have learned about the process oxide formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. और हम आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा बेटा? आयरन ऑक्साइड. मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक्टिविटी 4.3. Let us check the nature of rust form as a result of the reaction between iron and oxygen and water. एक जो ये रिएक्शन है आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, उसकी क्या नेचर है? नेचर मींस, अब देखिए आप नीचे देख पा रहे होंगे तो लिटमस पेपर क्लियर हो रहा होगा. तो लिटमस पेपर से हम कौन सा नेचर आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस वन इज बेसिक और एसिडिक, है ना. तो iron, oxygen and water collect a spoonful of rust and dissolve it in very little amount of water. अब एक आयरन है जिसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है तो वहां से रस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और एक छोटी टेस्ट ट्यूब में उसको मिक्स कर रहे हैं. ओके, एंड वी विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. हम देख रहे हैं कि जो रस्ट है वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड हो गया, मतलब नीचे की तरफ आ गया. शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब दोनों लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से भी और रेड लिटमस पेपर से, दोनों पेपर से हमें टच करना है. आपको लर्न तो है ना कि किसमें क्या होता है, ठीक है. तो इन एसिड के अंदर क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर टर्न होगा रेड में. In acidic solution, what happened? Blue litmus paper turned into a red litmus paper. But in basic solution,
ब्लू रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू अ ब्लू लिटमस पेपर. ओके, तो एसिडिक में ब्लू टर्न होगा किसके अंदर, रेड के अंदर, और बेसिक में रेड टर्न होगा किसमें, ब्लू के अंदर. ओके, तो रस सस्पेंशन रेड लिटमस पेपर से हमने इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट एंड देन द does copper also get rusted? I have seen greenish deposit on the surface. आगे show नहीं किया वो क्या? हाँ, now recall the activity burning magnesium. Okay. Now आप इस एक को देखकर बता सकते हो कि कैसा है, रेड लिटमस पेपर चेंज हुआ क्या बेटा? नहीं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी हो गई वो कैसी हो गई, रेड में चेंज हो रहा है, दैट मींस दिस प्रॉपर्टी कैसी होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी. जो हमारा लिटमस पेपर है वो कैसा है, रेड है. ठीक है, वो टर्न नहीं हुआ ना ब्लू में, तो दैट मींस ये क्या चीज है बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन है. डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन एक ग्रीनिश. अब देखो आयरन के ऊपर तो रस्ट लग जाता है. ओके, ठीक है, क्या कॉपर के मटेरियल्स जो होते हैं, कॉपर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटल. ओके, तो क्या कॉपर भी रस्ट होता है, कॉपर भी खराब होता है? लेकिन आपके घर पे अगर कॉपर के कोई वेसल्स होंगे या यूटेंसिल्स होंगे तो आप देखेंगे उनमें ग्रीनिश मटेरियल होता है. जैसे पूजा वगैरह के जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कॉपर के बने होते हैं. तो कुछ बर्तन जो अपन यूज नहीं ले रहे हैं, काफी दिन साइड में ही रखे हुए हैं, तो आप देखोगे उनपे ग्रीनिश डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कॉपर का रस्ट है. ठीक है, तो कॉपर एनवायरमेंट से रिएक्ट करके ग्रीनिश डिपॉजिट कर देता है कॉपर वेसल्स के ऊपर. When a copper vessel is exposed to moist air for long, जब copper vessel एक moist air के contact में ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, it acquire a dull green coating. ये क्या करता है, डल और ग्रीन कोटिंग कर लेता है अपने ऊपर. The green material is a mixture of copper hydroxide. जो green material है वो क्या है, copper hydroxide है, and copper carbonate. The following in the reaction moist air के साथ react किया, तो ये और now recall the activity of burning magnesium. burning magnesium वाली activity होती है. The ash obtained on burning magnesium will be dissolved in water and tested for its acidic. और उसको भी टेस्ट कीजिए कि ये एसिडिक है कि बेसिक है. Is the solution is acidic or basic? How do you acceleration this? You must have observed that the red litmus paper turned blue. अब आप इसमें देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो किसमें टर्न हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है. तो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ. तो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड द टीचर इन द क्लास take a small amount of powdered sulfur. Sulfur is example of non-metal. Okay, in a deflagrating spoon and heat it. The deflagrating spoon is not available. You may take a metal cap and deflagrating spoon means this type. इसके अंदर छोटी सी बाउल टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम सल्फर को ले सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो बॉटल्स की कैप होती है इजीली उसको एक मेटल वायर से कनेक्ट करके इसको बना सकते हैं. ये ठीक है, मेटलिक वायर अराउंड इट एंड गिव द शेप टू शोन फिगर 4.4. As soon as sulfur start burning, जैसे हम सल्फर को करते हैं, स्टार्ट करते हैं बर्न करना, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार एंड ग्लास टम्बलर. हमको जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट करता है ना, हम इन स्पून को इस ग्लास टम्बलर के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, कवर द टम्बलर विद द लिड, एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप. इतना ध्यान रखना है कि इसके ऊपर लिड डालनी है और इससे जो भी गैस एस्केप होती है उसको बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि सल्फर इज एग्जांपल ऑफ अ गैस. ओके, रिमूव द स्पून्स आफ्टर सम टाइम, ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस लिड. आप फटाफट से इसमें पानी डालें और उसका लिड को रिप्लेस करें. शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद रेड टू ब्लू लिटमस पेपर. बर्निंग ऑफ सल्फर powder. The testing of solution with litmus paper, जिसमें blue litmus paper किसमें turn हो रहा है बेटा, red litmus paper में. That means क्या हुआ, the name of the product formed in the reaction sulfur and oxygen is sulfur dioxide. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows: sulfur dioxide plus water is sulfuric acid. ये हमने एसिड रेन में भी रीड किया था कि भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में जो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है. ठीक है, तो द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू अ red. Generally, oxide of non-metal are acidic in nature. And recall the name of some laboratory acid base you have read in class 7. Note down their names in table 4.4. Identify they are metals or non-metal present in them, which form oxide with oxygen. जो oxide में ऑक्साइड करके उनको एसिडिक नेचर करते हैं. तो एज अ रिजल्ट इन लास्ट क्या हो रहा है, ऊपर में मैंने जो आपको आयरन का बोल दिया था, मे बी यहाँ पर टर्न करके नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मे बी
all metals जो हैं all are react with oxygen and जब उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर का होता है एंड नॉन मेटल्स का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर का होता है. ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके.